ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕਮ ਵੀਰੋ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਹੋਵੋਗੇ। ਵੀਰੋ, ਅੱਜ ਦੀ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਵੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਥਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣੇ ਕਥਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ। ਤੇ ਕਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਇਹਦੀ ਕਥਾ। ਜੇ ਮੋਹਾ ਕਾ ਘਰ ਮੋਏ ਪਿਤਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਸ ਸਿਆਣੀਏ ਪਿਤਰੀ ਚੋਰ ਕਰੇ ਵਡੀਏ ਹੱਥ ਧਲਾਲ ਕੇ ਮੁਸਵੀ ਏ ਕਰੇ ਨਾਨਕ ਅੱਗੇ ਸੋ ਮਿਲੇ ਜੇ ਖੱਟੇ ਘਾਲੇ ਦੇ ਮੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਉ ਜੋਰੂ ਸਿਰ ਨਾਵਣੀ ਆਵੇ ਵਾਰੋ ਵਾਰ ਝੂਠੇ ਝੂਠਾ ਮੁਖ ਵਸੇ ਨਿਤ ਨਿਤ ਹੋਏ ਖੁਆਰ ਸੂਚੇ ਏ ਨਾ ਆਖੀਏ ਬੈਂਜ ਪਿੰਡਾ ਧੋਏ ਸੂਚੇ ਸੇ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੋਏ। 17ਵੀਂ ਪੌੜੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 2 ਸ਼ਲੋਕ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ। ਪ੍ਰਥਮ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਉਸ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਮਨੋਤ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਤਰਾਂ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਕੁਝ ਦਾਨ ਕਰੀਏ, ਕੁਝ ਪੁੰਨ ਕਰੀਏ, ਭੋਜਨ ਅੰਨ ਵਸਤਰ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਿਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਜੋ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸਵਾਰਥ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਚਲੀ ਹੈ। ਵਰਨਾ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਵੇ ਕੋਈ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇ ਜੋ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆ ਹੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਬੋਧ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸ਼ਰਾਧਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ। ਜੈਸੇ ਹਰ ਧਰਮ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰਹਿਬਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਪੱਖ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਗਹਿਰਾ ਨਜ਼ਰੀਆ, ਬੜੀ ਪੈਨੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਧਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਆਖੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਖਾਵੇ ਇੱਕ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਪਿਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਤ ਪਿਤਰ ਨਾ ਮਾਨੇ ਕੋ ਮੂਏ ਸਰਾਧ ਕਰਾਈ ਪਿਤਰ ਵੀ ਬਪਰੇ ਕਿਉਂ ਕਰ ਪਾਵੇਂ ਕਊਆ ਕੂਕਰ ਖਾਈ। ਜੀਵਦੇ ਜਾਗਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਕੋਈ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਢੰਗ ਦਾ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਾਧ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਢੰਗ ਦਾ ਭੋਜਨ। ਔਰ ਆਖਿਆ ਜਾਏ ਇਹ ਪਿਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਪਿਆ, ਇਹ ਪਿਤਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਰਾਧ ਪੈ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਜੇ ਦਾਵਾ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਤਾਰਕਿਕ ਜੋ ਯਥਾਰਥ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਮੋਹਾ ਕਾ ਘਰ ਮੋਹੇ ਪਿਤਰੀ ਦੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਚੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਸੰਨ ਲਾਵੇ ਤੇ ਸੰਨ ਲਾ ਕੇ ਧਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ ਤੇ ਉਸ ਧਨ ਨਾਲ ਸਰਾਧ ਕਰਾਵੇ, ਚੋਰੀ ਦੇ ਧਨ ਨਾਲ ਜੋ ਚੁਰਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਹੈ, ਸੰਨ ਲਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਰਾਧ ਕਰਾਵੇ, ਪਿਤਰਾਂ ਦੇ ਨਿਵਿਤ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਆਖਿਆ ਜਾਏ ਉਹ ਵਾਕਈ ਪਿਤਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅੱਗੇ ਬਕਾਇਦਾ ਰੱਬੀ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, तो रब्बी विधान बनाने वाले और रब बड़ा सियाना है, या तो कह दईए कुछ जानता नहीं। अगर वो सब कुछ जानता है तो अगे वस्त सियाणीए पितरी चोर करे।
ਅੱਗੇ ਵਸਤੂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਵਸਤੂ ਤੇ ਚੋਰੀ ਦੀ ਹੈ। ਸਨ ਲਾਈ ਗਈ, ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਨਾਲ ਧਨ ਆਇਆ ਔਰ ਉਸ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਧ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵਸਤੂ ਤੇ ਚੋਰੀ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਚੋਰ ਬਣਾ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਗੇ ਵਸਤ ਸਿਆਣੀਏ ਪਿਤਰੀ ਚੋਰ ਕਰੇ। ਜੇ ਪਿਤਰਾਂ ਦੇ ਨਿमित्त ਚੋਰੀ ਦਾ ਦਾਨ ਅਰਪਣ ਕੀਤਾ ਹੈ तो फिर पितर चोर हो जाएंगे अगे। अगर वाकई अगे पहुंचता है और वाकई अगे साव सुजान है, अगर ऐसी मनोत है तो फिर पितर भी चोर हो गए। देखण दे चाहे सारी दुनिया का कानून इस गल नूं मनदा है कि चोर ने जो चोरी की थी वो ते गुनाह है, पर जो चोरी का समान अपने कोल रखे या वेचे ये भी गुनाह है, ये भी जुर्म है। इस नुकता निगाह नूं गुरु नानक देव जी महाराज साडे सामने रखते ने। अगर एक चोर नाजायज ढंग नाल उसने धन प्राप्त किया है, किसी का घर सन ला के किसी के घर दे चों चुरा के ते घर लिया के उस धन दे नाल श्राद्ध किया है, अपने पितरां दे निमित्त दान पिया करदा है, महाराज कहन चलो इत्थे तक असीं मन लैने आ, लेकिन ये मनोत भी नाल होवे कि अगे पहुंचदा है और अगे सारे सुजान बैठे ने, पुछाण वाले सियाणे ने परमात्मा का नियम और परमात्मा बहुत सियाणा है, तो फिर अगे वस्त सियाणीए पितरी चोर करे। फिर ते अगों वस्तु की पहचान हो जाएगी कि चोरी दी है और पितर भी चोर बना ले जाएंगे। क्या पितरां दे निमित्त कुछ भी नहीं भेजा जा सकता, उन्होंने कुछ भी नहीं दिता जा सकता। इतनी गल तो स्पष्ट है कि अस्थूल चीज असी नहीं भेज सकते। अजोका विज्ञान भी इसकी तस्दीक करता है। विचारां की पहुंच बड़ी दूर तक है, याद की पहुंच बड़ी दूर तक है। बिल्कुल किसी नूं बहुत गहरे तल तो याद करिए, भावें वो 3-4 हज़ार मील की दूरी ते होवे, तां देखण दे चाहे वो याद करन लग पैंदा है। पितरां दी ते बहुत दूरी अथाह दूरी ते ने। पता नहीं किस जन्म दे किस जून दे किहड़े लोक दे उन्हां पितरां दे निमित्त अगर कुछ भेजना है, देना है, अर्पण करना है, तो परमात्मा का नाम जपीए ते संकल्प करिए कि मैं ये पितरां दे निमित्त नाम जप रहा। और नाम सूक्ष्म है। सूक्ष्म वस्तु दूर तक भेजी जा सकती है, जैसे विचार बड़ी दूर तक पहुंचते हैं, याद बड़ी दूर तक पहुंचती है। इस तरह प्रभु चिंतन, प्रभु का सिमरन बड़ी दूर तक पहुंचता है। सतगुर दी बाणी जिह सिमरत सब किल विख नासे पितरी होए उधारो। पितरां दा भी उधार हो सकता है। असी अपने गुजर गए पितर बुजुर्ग उन्हां दा भी कल्याण कर सकते हैं, पर किस ढंग नाल? उन्हां दे निमित्त श्राद्ध करा के, अन्न वस्त्र दे के, पैसा पानी दे के, भोजन छका के। महाराज कहते नहीं, इस दे नाल ते उसे दा ही कल्याण हो सकता है जो भोजन छक रहा है, जो वस्त्र ले रहा है, जो पैसा ले रहा है, उसका ही कल्याण होया है, पितरां दा नहीं। और ये पितरां नूं नहीं पहुंचेगा। ना गुरु नानक मनदे ने, ना ही भगत कबीर मनदे ने, और कोई दार्शनिक जिहदी धार्मिक विचारधारा बकायदा विज्ञानक दृष्टिकोण ते भी पूरी उतरदी होवेगी, वो कतई इस गल नूं नहीं मनेगा कि खावे कोई ते पहुंचे किसे नूं। और फिर उसनूं पहुंचे जो मुद्दत हुई, मर गया और पता नहीं किस जोन दे च, पता नहीं कित्थे है, तो ये धन किस तरह पहुंचेगा? ये वस्त्र किस तरह पहुंचणगे? ये भोजन किस तरह जो है पहुंचणगे? अगर कोई मनुख अपने पितरां नाल संबंध बना के रखना चाहे तो कुछ देना भी चाहता है, कुछ भेजना भी चाहता है, तो साहब कहते हैं हाँ दिता जा सकता है, भेजा जा सकता है। अजोका विज्ञान भी इस कोशिश दे है कि हो गुजरे पुराने जो बुजुर्ग ने, महापुरुष ने, उन्हां दे बोल काबू च कीते जान। खला दे जो मौजूद ने, इहदा मतलब उन्हां दे बोल मौजूद ने, उन्हां दे सूक्ष्म ढांचे मौजूद ने। अगर पितर किसे लोक दे पुनर्जन्म प्राप्त कर चुके ने, कोई होर जून दे चले गए ने, ते उन्हां दा कल्याण करना है, किस तरह करिए?
तो सतगुरु कहते ने प्रभु का सिमरन कर पर पितरां दे निमित्त कर, जह सिमरत सब किल विख नासे, पितरी होए उधारो। पूर्ण दृढ़ संकल्प नाल कि तू प्रभु ਨੂੰ याद करें एकाग्रता दे नाल, और संकल्प करें कि इस कीती हुई याद का फल मेरे पितरां ਨੂੰ मिले। महाराज कहने मिल सकता है, पर तू आखे हुण मैं श्राद्ध कराना है, किसी ਨੂੰ भोजन छकाना है, वस्त्र दान कराना है, दुध पिलाना है, खीर खवानी है, ये मेरे पितरां ਨੂੰ पहुंचे। तो गुरु नानक देव जी महाराज कहते ऐसा नहीं। अगर आख्या जाए हाँ पहुंचता है, कोई हट करे, तो महाराज कहते फिर ऐसा भी हो सकता, अगर कोई चोर, अगर कोई डकैत डाका मार के धन लियावे ते उस धन दे नाल श्राद्ध करावे, ते जी अगे परमात्मा सियाणा है तो उन्होंने इतनी भी पहचान हो जाएगी कि चोरी दे धन नाल श्राद्ध होया, तो फिर अगे वस्तु की पहचान हो जाएगी कि जब चोरी दे धन नाल ही श्राद्ध होया है, तो श्राद्ध सारे दा सारा चोरी हो गया, क्योंकि चोरी दे धन नाल होया ना, ये सारा पुण्य भी एक चोरी हो गया। जैसे चोरी करना पाप, चोरी दा साजो समान रखना भी पाप। अगर ये पितरां नूं दे दिता गया है चोरी दा धन, चोरी दा अन्न, चोरी दे वस्त्र, चोरी दा साजो समान, तो महाराज कहते ने अगे वस्त सियाणीए पितरी चोर करे। फिर ते पितर भी चोर बना ले जाणगे, फिर तू की श्राद्ध कीता। और ऐसा कोई मनुख दावा नहीं कर सकता कि 100% मेरा धन पावन है, पवित्र है। कुछ ना कुछ मिश्रण झूठ दा होवेगा, कुछ ना कुछ मिश्रण दुनियावी होवेगा। अगर वाकई ये पहुंचता है तो फिर झूठ भी पितरां नूं पहुंचेगा, ये अनर्थ भी पितरां नूं पहुंचेगा, ये अन्याय भी पितरां नूं पहुंचेगा। महाराज कहते नहीं, इस तरह की अस्थूल चीजां पितरां तक नहीं पहुंचदियां। अगर पहुंचदियां तो एक चोर का कराया होया श्राद्ध पितरां नूं चोर बना देवेगा। साहिब गुरु नानक देव जी महाराज के समय जो राज सिंघासन सी, राज प्रथा सी, उस दे विच इस्लामी शरह के मुताबिक चोर दे हथ कट दिते जाते सन। अज भी कई इस्लामी देशों च कट दिते जाते ने। तो महाराज कहते ने वड्डिए हथ दलाल के मुसफी ए करे। जो विचोला है, जो दलाल है, वास्तविक वो चोर है जो चोरी का धन एक थां तो दूसरी थां ते पहुंचाता है, तो फिर उसके हथ कट दिते जाणगे। दलाल कौन? अरदासिया, विचोला, जो ब्राह्मण श्राद्ध करा रहे हैं। महाराज कहते हैं फिर इसके ते हथ कट दिते जाणगे, क्योंकि चोरी का धन एक थां तो दूसरी थां ते पहुंचा रहे हैं। नानक अगे सो मिले जे खट्टे घाले दे। अगे कुछ प्राप्त होंदा है, मरण तो बाद प्राप्त कुछ होंदा है। महाराज कहते हैं हाँ होंदा है। अगर यही देही कुछ घालना घाले, कुछ जप करे, कुछ तप करे, कुछ पुण्य करे, तो नाश नहीं होंदे। ये मरण पर्यंत नाल जांदे ने, मरण तो बाद नाल जांदे ने। ये सब कुछ नाश नहीं होंदा, बल्कि मनुख झोली विच पा के इस सब कुछ नूं लै जांदा है। तो साहिब कहते जे तू अपना उधार चाहना है तो श्राद्ध दे भरोसे ते ना रही, अपना कल्याण खुद कर लवी। अपनी झोली गुणा नाल खुद भर के ले जाए। मता तू सोचे कि मेरे मरण तो बाद मेरे पुत्र श्राद्ध करा लेंगे, हवन करा लेंगे, जप तप करा लेंगे, और इस तरह मैनू मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। नहीं, परमात्मा की दुनिया विच इस तरह की बचकानी गल्लां नहीं ने। अगर कोई जीवन भर अनर्थ करे तो मरण लग्या पुत्रियां नूं कह देवे श्राद्ध कर देना, ताकि मैनू सब कुछ की प्राप्ति हो जाए और मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाए। साहिब कहते नहीं, नानक अगे सो मिले जो खट्टे घाले दे। अगे मिलता है पर वही कुछ मिलता है जो ये दे घालना घाल दी। दूसरा जो ये आख्या जाता है कि फलाने जल दे इशनान नाल बंदा पावन हो जाता है, पवित्र हो जाता है। महाराज कहते नहीं, सूचे ए ना आखिए बहन जे पिंडा धोए, सूचे से ही नानका जिन मन वसया सोए। ये सुचे नहीं जो तरह तरह के तीर्थां का इशनान करन या 2 वक्त रोज इशनान करन,
ਬਸਤਰ ਸਾਫ਼ ਪਹਿਨ ਲੈਣ, ਮੰਨ ਲਵਾਂਗੇ ਤਨ ਸੁੱਚਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਦੀ ਸੁਚੇਮ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਮਨ ਸੁੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੱਚ ਨਾਲ, ਤਨ ਸੁੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਨਾਲ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਚੇ ਸੇ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੋਈ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਉਂ ਜੋ ਰੂ ਸਿਰ ਨਾਵਣੀ ਆਵੇ ਵਾਰੋ ਵਾਰ। ਜਿਵੇਂ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਿਕ ਨਿਯਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਹਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸਤਰੀ ਝੂਠੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਾਲਬਨ 3 ਦਿਨ ਨਾ ਭੋਜਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਪਰੋਸ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਚੌਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਨੋਤ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਚੌਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹ 3 ਦਿਨ ਤੇ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਿਕ ਨਿਯਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਤਰੀ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਅਪਵਿੱਤਰਤਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਪਵਿੱਤਰਤਾ ਈਸ਼ਵਰ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਅਪਵਿੱਤਰਤਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਝੋਲੀ ਚ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦ ਪਾਵਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਖੁਦ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਮਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਉਹ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਬਣਾ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰੋਸ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਭਜਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਿਕ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਇਹੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਉਂ ਜੋ ਰੂ ਸਿਰ ਨਾਵਣੀ ਆਵੇ ਵਾਰੋ ਵਾਰ। ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਜੈਸੇ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਨਾਉਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਗਾਲਬਨ 3 ਦਿਨ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਆਖੋ, ਝੂਠੇ ਝੂਠਾ ਮੁਖ ਫਸੇ ਨਿਤ ਨਿਤ ਹੋਏ ਖੁਆਰ। ਜਿਹਦੇ ਮੁਖ ਦੇ ਝੂਠ ਹੈ, ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਮੂੰਹ ਝੂਠਾ ਹੈ ਇਹੀ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਜੋ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹੀ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਤੇ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਿਕ ਨਿਯਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਦੌਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੇ ਐਸਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਔਰ ਸਤਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਮੁਖ ਦੇ ਝੂਠ ਹੈ ਉਹ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੋਏਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇਗਾ, ਝੂਠ ਹੀ ਖਲੇਰੇਗਾ, ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਝੂਠਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਮੁਖ ਦੇ ਝੂਠ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਝੂਠੀ ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਿਕ ਨਿਯਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਹੈ ਨਾਵਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਝੂਠੇ ਝੂਠਾ ਮੁਖ ਵਸੇ ਨਿਤ ਨਿਤ ਹੋਏ ਖੁਆਰ। ਸੂਚੇ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਏ ਬਹਿਨ ਜੇ ਪਿੰਡਾ ਧੋਏ। ਸੂਚੇ ਸੇ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੋਏ। ਆਪਣਾ ਤਨ ਜੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਲ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸੁੱਚੇ ਨਹੀਂ। ਸੁੱਚੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਵਸ ਗਿਆ, ਈਸ਼ਵਰ ਵਸ ਗਿਆ। ਬੀਜਕ ਨਾਮਕ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਬੋਲ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜਕ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਧਨੀ ਰਾਮ ਦੇ ਵੀ ਬੋਲ ਨੇ ਜੋ ਕਬੀਰ ਪੰਥ ਦੇ ਉੱਗੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਬੀਰ ਪੰਥ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ तमाम ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਭਗਤ ਧਨੀ ਰਾਮ ਨੇ ਲਈ। ਤੇ ਧਨੀ ਰਾਮ ਨੇ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਰਚਨਾ ਰਚੀ ਉਹਦੇ ਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਨਾ ਵਰਤ ਕੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਦਾ ਵਰਤਿਆ। ਔਰ ਚूंकि ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਸਨ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਦੇ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਬੋਲ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੱਟ बढ़ाए जो नर तर है मोर क्यों ना तर है जिनके लंबे लंबे पर है। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਟਾਵਾਂ ਬੋੜ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੇਸ ਕੁਦਰਤੀ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਜਟਾਵਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਜਟਾਵਾਂ ਬੋੜ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਬੋੜ ਦੇ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇਸ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 10 ਫੁੱਟ 15 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਵੀ
लंबे ਇਹ ਕੇਸ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। तो धनी राम कहते ने जट बढ़ाए जो नर तरह मोर क्यों न तरह जिनके लंबे लंबे पर हैं गंग नहाए जो नर तरह मेंढक क्यों न तरह जिनके गंगा में घर है। तू तो एक दिन स्नान करना है, 2 दिन करना है, साल बाद करना है, 6 महीने बाद करना है, और जो दिन रात गंगा दे च रह रही ने मछलियां ते मेंढक, इन्हां दा ते पार उतारा अज ही हो जाना चाहिए है। इतने गंगा तो बाहर ही नहीं निकलते, ये दिन रात गंगा दे विच ने। तर्क नहीं कर रहे धनी राम। भगत कबीर जी दे भी बोल ने गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे अंदर आप कहते ने कबीर गंगा तीर जो घर करे पीवे निर्मल नीर पर बिन हर भजन न मुक्त होए इम कह रमे कबीर। भावें तू कुटिया गंगा दे तट ते बना लवे, निर्मल जल पीवे ते इशनान करें, पर बिना हरि दे नाम तो बिना सच दी धारणा तो तेनू मोक्ष गति दी प्राप्ति नहीं हो सकती। तो धनी राम कहते ने जट बढ़ाए जो नर तर हैं मोर क्यों न तर हैं जिनके लंबे लंबे पर हैं गंग नहाए जो नर तर हैं मेंढक क्यों न तर हैं जिनके गंगा में घर हैं शंख बजाए जो नर तर हैं गधे क्यों न तर हैं जिनके शंख जैसे सुर हैं। कहत कबीर सुनो रे संतो वही नर तर हैं जिनके हिरदे में हर है। पार उतारा उन्हीं दा आउंदा है जिन्हां दे हिरदे विच परमात्मा दे नाम दा वासा होवे। इस वास्ते साहिब कहंदे ने तीर्थां दा इशनान एक चंगी वाइब्रेशन दे विच, एक चंगे माहौल विच कुछ दिन बसर करना ते ठीक है। एक चंगे वातावरण विच जा बैठना ये गल ते चंगी है, लेकिन एक डुबकी ला के कह देना कि सारे पाप लह गए ने, उतर गए ने, साहिब कहते ने एक झूठी कल्पना तो इलावा और कुछ नहीं है। काम क्रोध पंचांके वस रह तीर्थ नाय कहें सब उतरे। पंजे चंडाल तेरे अंदर ने ते डुबकी ला है ते कहना मोक्ष गति दी जो है प्राप्ति होवेगी, ऐसा हो नहीं सकता। एक आम धारणा है कि जिहड़ा बनारस दे च मर जाए वो शिवादिपुरी च जांदा है, उन्होंने मोक्ष गति की प्राप्ति होती है। बनारस दे च रहिंदा होया कबीर इस सिद्धांत नाल सहमत नहीं। आप कहंदे ने मनो कठोर जे मरे बनारस नरक न बांचिया जाई हर का संत मड़े हलंबे तिन सगली सैन तराई। अगर हिरदा कठोर है तो बनारस दे च मर गया है कुंभी नरकां च जाएगा, पर जे हिरदे विच परमात्मा दा नाम है ते जे किधरे मगहर दे च भी मर जाए वो अपने संगी साथियां नूं भी पार करेगा, भाव उन्हां नूं भी चंगी प्रेरणा दे जाएगा। कबीर दा अंत मगहर दे च होया है। जो गोरखपुर दे कोल एक छोटा जिहा कस्बा है उस बारे ये धारणा है कि जिहड़ा इत्थे मरेगा वो खोते दी जोन दे च जाएगा। तो कबीर ने दावा कीता मैं इत्थे ही मरना है और मैं खोते दी जोन दे च भी नहीं जावांगा। उन्हां दे अपने बोल सगल जन्म शिवपुरी बिताया मरती बार मगहर उठदा आया। गुरु ग्रंथ साहब दे बोल भी सारा जीवन ते मैं बनारस विच बतीत कीता है, पर हुण मैं मरण लगा मैं मगहर दे च मरांगा। मैं दसना दुनिया नूं कि हिरदे विच अगर कोई कठोरता है मलिनता है तो बनारस विच मर के भी मुक्ति नहीं। अगर हिरदा पावन है तो मगहर विच मर के भी प्रभु की प्राप्ति है, राम की प्राप्ति है, ईश्वर की जो है प्राप्ति है। गल सारी प्रभु ते नाम ते आवेगी, सच ते आवेगी। और मैं अज देखा कि कबीर की समाध के उत्ते एक पासे एक मजौर बैठा है, एक पासे एक ब्राह्मण बैठा है, और कबीर सारी जिंदगी कहते रहे हमरा झगड़ा रहा न को पंडित मूला छाड़े दो। बई मैं दोहां नूं छड़ दिता है, मैं दोहां दे कर्म कांड नूं छड़ दिता है। फिर मेरा कौन है जिस तो मैं प्रेरणा पे लेना? वो मेरा परमात्मा, वो मेरा अकाल पुरख, वही मैनू शिक्षा दी जा रहा है, वही मैनू समझाई जा रहा है। और उस करके मैनू समझ पई है कि वो जद हिरदे विच वसदा है तो मनुख पावन हो जाता है, मनुख पवित्र हो जाता है। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज इस श्लोक विच यही कुछ फरमान पे करते हैं। झूठे झूठा मुख वसे नित नित होए खुराक सूचे ए न आखिए बहन जे पिंडा धोए सूचे से नानका
जिन मन वसिया सोए। ब्राह्मण मत दे जितने भी तीर्थ ने, खास करके 68 तीर्थ, वो नदी नालियां दे तट ते ने, ਸਰੋਵਰਾਂ ਦੇ ਤੱਟ ਤੇ ਨੇ। ਤੀਰਥ ਇੱਕ ਨਹੀਂ 68, ਔਰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਨਦੀ ਨਾਲਿਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਕੁछ इशनान बड़े विशेष मन ले गए, जैसे माघी का इशनान। इस बारे भी गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज विच बैठे साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमान करते ने, माघ मझन संग साधुआ धूड़ी कर इशनान, हर का नाम ध्याए सुन सबना नू करदान। जे वाकई तू इशनान करना है, अपने आप नू पावन करना है, पवित्र करना है, तो जिथे सतपुरुष बैठे ने, सत नाल जुड़े हुए, सत दी उमंग दे जो बैठे ने, सत दी तरंग दे जो बैठे ने, उन्हां दे चरनां दी खाक नू मस्तक ते ला, उस धूड़ दा इशनान कर। क्या इत्थे तर्क नहीं खड़ी हो सकती कि धूड़ दा इशनान? हाँ, जद मनुख नाम जपदा है, बंदगी करदा है, तो कहते हैं सूक्ष्म तरंगा धरती नू छूंदियां ने, मिट्टी पावन होंदी है, खाक पावन होंदी है। और दुनिया भर दे धार्मिक विद्वानां ने मन लिया है, वो खाक नहीं रह जाती, वो ते अक्सीर हो जाती है। इसे नू शेख सादी साहब ने कहा है, सुरमा कुन तो खाक औलिया ताबा बीनी इब्तिदा ता इंतहा। जे आद तो लेके अंत तक तू असलीयत नू वेखना चाहना है, तो जो औलिया है, जो अल्लाह नाल जुड़िया होया है, उहदे पैरां दी खाक नू मस्तक ते ला, अपने बदन दे ला। ये ऐसा पावन गुसल होवेगा कि तेरी रूह पावन हो जाएगी, पवित्र हो जाएगी। एक दिन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज प्रसन्नता दे घर दे आए ते आप नंद लाल नू कहण लगे, साडा जी करदा है तैनू कुछ देईए, पर ऐसा ना होवे साडी देन कुछ होर होवे, तेरी मंग कुछ होर होवे। इस वास्ते तू स्वयं मंग ते असी देईए। क्योंकि जिस नाल प्यार होवे, जो चंगा लगन लग पवे, ओनू कुछ देण नू जी करदा है। जिस नाल नफरत ते घृणा होवे, ओदे कोल खोण नू जी करदा है। साहिब कहण लगे, तू मैनू बहुत प्यारा लगदा है, तेरी सेवा, तेरी जीवन शैली, तेरा कीता होया सत्संग, तेरा जप ते तेरा तप, आए हुए सत्संगियां दी सेवा जिस ढंग नाल तू करदा है, नंद लाल मेरी प्रसन्नता, मेरी खुशी तेरे नाल है, पर हुण तू कुछ मंग, मैं तेनू देआं। नंद लाल हथ जोड़ के कहंदे, प्रभु जद मैं इस दर ते आया सी, बड़ियां ही ख्वाहिशां नाल भरिया होया, बड़ा तनाव, बड़ी मंग, लेकिन सहजे सहजे ये बोझ लै गया। आम विचारवान कहते ने कि जितनियां नाजायज गलत ख्वाहिशां ने, वो प्रभु चिंतन दे नाल मिट जांदियां ने, मर जांदियां ने। प्रभु हुण ते मेरे अंदर कोई चाहत रही नहीं, तू किसी चाहत नू पैदा कर, असी दे के खुश होना है, सानू दे के खुशी होवेगी, तू जरूर कुछ ना कुछ मंग। भाई साहब मंग करते ने, हे प्रभु, फिर इक्को एक आरजू, इक्को एक तमन्ना जो दिल दे किसी कोने विच पई है, वो मैं आप जी दे सामने रखा। शब्द कुर्बान खाके राहे संगत, दिले गोया हमें बस आरजू करद। जिन्हां जिन्हां रस्तियां चों लंघ के ये संगतां आप दे दर तक पहुंचदियां ने, उन्हां रस्तियां दी खाक मैनू बना दे, ताकि मैं उन्हां दे चरनां नाल स्पर्श करके पावन हो जावां, पवित्र हो जावां। जिन्हां दे हिरदे च परमात्मा दा नाम है, उन्हां दे चरण इतने पावन ने कि धरती ते जिथे भी टिकणगे जरियां नू पावन कर देणगे, रेत नू पावन कर देणगे। तो गुरु अर्जन देव जी महाराज कहंदे ने, वाकई जे तू अपने मन नू पावन करना चाहना है, पवित्र करना चाहना है, और बड़े सौखे ढंग नाल करना चाहना है, तो सौखा ढंग ते यही है कि माघ मजन संग साधुआ धूड़ी करे स्नान, हर का नाम ध्याए सुन सबना नू करदान। उन्हां दी संगत विच बैठ के हरि दा नाम जप, ते जपिया होया नाम ये प्रेरणा सारियां नू जो है दान कर।
इस ढंग दे नाल जन्म कर्म मल उतरे मन ते जाए गुमान। जन्मां जन्मांतरां दी जिहड़ी मैल है तेरे मन दे उत्ते सारी दी सारी लह जाएगी और तू पावन। ਤੇ ਵੀਰੋ ਅੱਜ ਦੀ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਨੇ ਕਿੱਡੇ ਅੱਛੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਵੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਵੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸਵਾਬ ਉਹਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਵੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੈ। ਤੇ ਵੀਰੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵਾਕਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹਕੀਕਤ ਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਅੱਛਾ ਅਜਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅਗਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਫਰਾਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਤੇ ਵੀਰੋ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬੁਰਾ ਸਲੂਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਹੰਨਮ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਵੀਰੋ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਖਾਣਾ ਭੇਜਦੇ ਆ ਵੀਰੋ ਉਹਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਤਾਂ ਕੁਛ ਅਮਲ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਪਿਛਲੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀਰੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੰਗੇ ਤੇ ਨੇਕ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਚੰਗੇ ਤੇ ਨੇਕ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਿਓ। ਆਪਣਾ ਰੱਖਿਓ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ। ਰੱਬ ਰੱਖ।